Jamui MP Arun Bharti reached Munger for his one-day program. On July 19th, Union Minister Chirag Paswan will row in Munger's polo ground. Opposition RJD had threatened to blow up Chirag Paswan with a bomb on social media. LJP Ram Vilas Party registered a case in Cyber Police Station on the threat. Arun Bharti said that this attack is not on Chirag but on Bahujan Samaj. Actually, LJP, Ram Vilas, National President cum Union Minister Chirag Paswan's Nav Sankalp Sabha is going to be held in Munger on July 19th. For its promotion, many big leaders and workers of LJP have started visiting Munger. In this episode, Jamui MP Arun Bharti reached Munger and informed about Chirag Paswan's arrival in Munger in a program organized at Hari International and prepared a strategy by meeting the workers. During the press conference held at the Circuit House, Arun Bharti said that his party is preparing to contest on 243 seats. Currently, there is talk of seat sharing in the NDA alliance. After seat sharing, a survey is being conducted to determine from which general seat Chirag Paswan will contest the election. The opposition is getting immense public support and this is why they are panicking. They see defeat in front of them, that is why they are talking about killing Chirag Paswan with a bomb. The opposition parties are trying to bring back Jungle Raj. This is not just an attack on a person but an attack on the Bahujan leadership of democracy. Taking a dig at Prashant Kishore, he said that Chirag Paswan has not done any work for Bihar. He must have given this statement when he would not have any data or information about it. He is doing many things to bring Chirag Paswan's slogan of Bihar First to the ground. Taking a dig at Tejasvi Yadav, he said that during the 15 years of rule of his family, not a single school was opened from which he could pass the matriculation examination. When they answer the question about how many primary schools, colleges and universities were opened during the 15 years of rule, then they will tell what Chirag Paswan has done for Bihar. जमुई सांसद अरुण भारती अपने एक दिवसीय कार्यक्रम को ले पहुंचे मुंगेर। 19 जुलाई को मुंगेर के पोलो मैदान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गरजेंगे। विपक्षी राजद ने चिराग पासवान को बम से उड़ाने की थी सोशल मीडिया पर धमकी पर लोजपा रामविलास पार्टी ने साइबर थाना में मामला किया दर्ज। अरुण भारती ने कहा कि यह हमला चिराग पर नहीं बहुजन समाज पर है। दरअसल मुंगेर में आगामी 19 जुलाई को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नव संकल्प सभा होने वाला है, जिसके प्रचार प्रसार को ले लोजपा के कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं का मुंगेर दौरा शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जमुई के सांसद अरुण भारती मुंगेर पहुंचे और हरी इंटरनेशनल में आयोजित कार्यक्रम में चिराग पासवान के मुंगेर आने की जानकारी दी और कार्यकर्ताओं से मिल रणनीति तैयार की। वहीं सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार सम्मेलन के दौरान अरुण भारती ने कहा कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात चल रही है। सीट शेयरिंग के बाद चिराग पासवान किस सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसकी सर्वे करवाई जा रही है। जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, इसी से विपक्षी में बौखलाहट है। उनको हार सामने नजर आ रहा है। यही कारण है कि चिराग पासवान की हत्या बम से कराने की बात कर रहे हैं। विपक्षी दल जंगल राज को पुनः लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र के बहुजन नेतृत्व पर हमला है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने जो कहा कि चिराग पासवान ने बिहार के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने ये बयान उस समय दिया होगा जब उनके पास इसको लिए कोई डेटा नहीं होगा या कोई जानकारी नहीं होगी। चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट का नारा को वे धरातल पर उतारने के लिए कई काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पे कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके परिवार के 15 साल के शासनकाल में एक भी ऐसा स्कूल नहीं खोला जिसमें से वे मैट्रिक परीक्षा पास कर सके। जब वे 15 साल के शासनकाल में कितने प्राइमरी स्कूल खोले गए, कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले गए, इस बात का जवाब दे दे तो वे ये बताएंगे कि चिराग पासवान ने बिहार के लिए क्या क्या किया। हम लोग 2 कार्यक्रमों के तहत लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। चिराग पासवान जी का जो एक विकसित बिहार बनाने का विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जनता के समक्ष रख रहे हैं। इसकी शुरुआत हम लोगों ने शाहाबाद से की थी, जहां पर जनता का ऐतिहासिक समर्थन और आशीर्वाद मिला। इसके बाद राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम, उसके बाद फिर सारण में हम लोगों ने नव संकल्प महासभा की थी। और इन सभी सभाओं की जो ऐतिहासिक सफलता है, उससे इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता हमारे नेता चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के
संकल्प के साथ खड़ी है। उनका जो विजन है बिहार को विकसित बिहार बनाने का, उस संकल्प के साथ खड़ी है। और यही जनता का अपार जन समर्थन विपक्ष को विचलित कर रहा है। इस चुनावों में उनको आती हुई अपनी हार अप्रत्याशित दिख रही है और इसीलिए इस बौखलाहट में उन्होंने कल चिराग पासवान जी की हत्या बम से उड़ाने तक की बात की थी। इसी बौखलाहट में उन्होंने जंगल राज को पार्ट 2 के रूप में यहां लाने का प्रयास किया था। मैं आपको बताता हूं कि ये बिहार की एक सम्मानित पत्रकार है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर एक राजद का आपराधिक तत्व ने चिराग पासवान जी को बम से उड़ाने की बात कही थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराया है और उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर वैचारिक हमला नहीं है, यह पूरे लोकतंत्र पर, बहुजन नेतृत्व पर हमला है। साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब बहुजन नेतृत्व, दलित नेतृत्व आगे बढ़ता है, तब तब उसे रोकने के लिए पहले उसके मान पर हमला किया जाता है और तब जब वो लीडर तब भी नहीं रुकता, तब उसके जान पर भी हमले की बात की जाती है। और चिराग पासवान जी पर यह हमला पूरे बहुजन समाज की राजनीतिक चेतना पर हमला है। साथियों, अगर आप याद करें, आप आज से 20-30 3 दशक पहले की बात करते हैं, तो आप याद कीजिए पूरे उत्तर भारत में आपको बहुजन नेता के तौर पर मुलायम सिंह यादव दिखते हैं, सोनेलाल पटेल जी दिखते हैं उत्तर प्रदेश में, कांशीराम जी दिखते हैं, मायावती दिखती हैं बिहार में, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी और सरीखे नेता दिखते हैं। लेकिन अब समय है जब इस बहुजन नेतृत्व को एक युवा नेता आगे लेकर के चले और इस पर, इन सारी कसौटियों पर अगर कोई नेता खरा उतरता है तो चिराग पासवान जी हैं। लेकिन जब भी चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बात करते हैं, विकसित बिहार को बात करते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं, तब उनके मान और उनकी जान पर हमला करने की बात विपक्ष हमेशा करता रहा है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने नव संकल्प महासभा शुरू किया था शाहाबाद से, तो लोगों ने आशंकाएं जताई थी, लेकिन जनता का प्यार हमारे नेता के विचारधारा, उनके विजन को मिल रहा है। और इसी श्रृंखला में छपरा के बाद नव संकल्प महासभा हम लोग मुंगेर में करने जा रहे हैं 19 जुलाई को दोपहर 1 बजे, जहां पर